हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद वाणी की जय। 23 जून। एक शिष्य का कर्तव्य है कि उसे किसी भी कीमत पर अपने गुरु की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। लॉस एंजलिस, 23 जून 1972। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद वाणी की जय। It is not very difficult to satisfy Krishna. Krishna is so kind. He says, Patram puspam phalam toyam jomi bhaktya prajachit. Krishna says, you want to feed me, that's all right. You collect little flower, patram, a little leaf, whatever, not that all, any one of them. Patram, puspam, phalam, toyam, a little water. Jo me bhakta prajachiti. Real thing is bhakti, love, devotion. Not that Krishna is asking you, bring volumes of luchi, puri, kachori, halwa. No. Krishna wants your love. Real thing, bhaktya, jomi, bhaktya praja. Krishna is not beggar. Neither Krishna is hungry that he has come to your place to eat something. That's not the position, Krishna's. Krishna wants only your love. Just like father takes the responsibility of the whole family. He works hard day and night to maintain the family. He expects only love from his wife and children. That is the impetus of economic development. Otherwise, he is earning daily thousands and lakhs of rupees. It is not that he will eat. He will eat that 4 chapatis, that's all. What, 6 annas. But he works so hard just to be satisfied that his wife, his children love. When he comes at home, he sees them very satisfied. Similarly, Krishna has expanded this family. Eka Bahushyama. He has become so many living entities. What is the idea? Anandamaya Abhyasat. Because he is Anandamaya, he wants to enjoy the love exchange between the living entities. That is his purpose. Otherwise, why he has created? He wants love. But these rascals, they have forgotten that thing. They are saying there is no God. I am God. I am enjoy. Instead of loving God, they are becoming God. This has killed the whole situation. Therefore, Krishna comes and he wanted to re-establish that reciprocal exchange of love, which is called bhakti. You love Krishna, and Krishna loves you. Krishna loves you even without your love. Otherwise, how you are eating? You cannot live even for a moment without Krishna's mercy. That's a fact. Eko bahunam vidadati kaman. So, Krishna comes. Krishna, when he says, Dharma samasthapanarthaya samvamami juge juge. This is real dharma. Dharma means dharmantu sakshat bhagavat pranita. Dharma means what is enjoined by this Lord, God. What God says, that is dharma. God says, do this. That is dharma. Not that you manufacture your dharma. God says, Krishna says, Manmana bhavamad bhakta madhyaji mang namaskuru sarva dharman paritajya mamekang sarang. This is dharma. Anything beyond this, all nonsense. They are not dharmas. Dharma koitava, cheating, simply cheating. Therefore Bhagavad says, Dharma purojjita atra koitava.
all rascaldom dharma is thrown away, kicked out. This is dharma. Dharmantu sakshat bhagavat pranitam. This is dharma. Therefore, here it is same thing is confirmed. Sanusthhitasya dharmasya samsiddhi haritosanam. You are religious, that's all right. But the purpose of religion is to satisfy the supreme law. That is perfection. It doesn't matter because it is said, varnasama vibhagasa. A brahmana varna, he can satisfy Krishna by his tapasya, by his truthfulness, by his knowledge of the Shastras. He can preach the knowledge of the Shastra to the world. He can eat on behalf of God. Therefore, according to Vedic civilization, there is Brahman Bhojan. Brahman Bhojan means whatever a Brahmana eats, it means God eats, Krishna eats through the Brahman. Therefore, Brahman, in Vedic civilization, there is no Daridra Bhojan. There is no such word. Now they have manufactured refugee Bhojan, Daridra Bhojan. But the real is Brahman Vaishnava Bhojan. Because through the mouth of the Brahmana and Vaishnavas, those are real Brahman. So this is the Samsiddhi Haritosanam. You may remain a Brahmin, that's all right. Just like Arjuna. Arjuna was a Kshatriya. He was not a Brahmin. He was Kshatriya. He was not a sannyasi. He was a Grihastha, king. His business, he knew how to kill. So by killing, he satisfied Krishna. Samsiddhi Haritosa. This is the whole purpose of Bhagavad Gita. He was unwilling to kill, and Krishna was inducing him. He must kill. And when he agreed to kill, then Krishna became satisfied. He became perfect. These are the evidence. The purpose is to satisfy Krishna. When he was denying to fight, that was his own satisfaction. I shall not kill my grandfather, my nephews, my brother on the other side. If they die, I shall be unhappy. So what is the use of killing them? These are all sense gratification, so-called non-violence. A devotee does not know what is violence or non-violence. He wants to satisfy Krishna. That's all. They do not know what is morality or immorality. They want to satisfy Krishna. Just like the gopis. At dead of night, they went to Krishna. There is immorality. But they did not know what is morality or immorality. They must go to Krishna. Samsiddhi Haritosanam. So, anyone, in whatever position he may be, it does not matter. Everyone should try to satisfy Krishna. Madhyaji mang namaskuru. Manvana mad bhakta. Madhyaji mang namaskuru. This is perfection of life. Always think of Krishna. Manvana. Always become my devotee. Mad bhakta. Always worship me. Madhyaji. Always offer your obeisances unto me. Mang namaskuru. But I have got other religions, sir. Why shall I think of you only? I have to think of Goddess Kali. Otherwise I cannot eat meat. Therefore Krishna says, Sarva dharma and paridhi. This is all nonsense. Give up all this nonsense. Sarva dharma and parittaja mam ekam. Simply unto me. Ekam. Don't bother with other demigods. They are my servants. You are not to satisfy my servants. Of course, those are real servants.
that is different. So this is the real dharma, Sangsiddhi Haritosana. If you somewhere or other can satisfy Krishna, just like Arjuna by killing, he said killing art is not very good art. But because by killing he satisfied Krishna, Krishna gave him certificate, Bhaktosi Priyosi me. Oh, you are my very dear friend. Because Krishna's purpose was to kill the demons. Paritranam sadhunam vinashaya cha duskritam. So Arjuna helped to kill the demons and fulfill the desire of Krishna. And therefore he became perfect by killing. So, if you do anything which is sanctioned by Krishna or by his bona fide representative, that is real dharma. Samsiddhi Haritosana. Thank you very much. Hare Krishna. हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 22। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। कितना सुंदर उदाहरण से भगवान यहाँ समझा रहे हैं, जो हर कोई समझ सकता है। देखिए, हम सभी बाजार जाते हैं, कपड़ा खरीद के लाते हैं और नए कपड़े को तो बहुत प्रेम करते हैं, थोड़ा सा भी दाग नहीं लगना चाहिए। हर नई वस्तु को हम थोड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन उसके बाद वही कपड़ा कुछ समय बाद पोछा बन जाएगा। तो आप कपड़ा खरीद के लाते हैं, फिर उसको अच्छे से ड्राई क्लीन करवाते हैं, पहनने के बाद फिर यूज करते हैं, धोते हैं। तो पानी के संपर्क में आने से धीरे धीरे उसकी सिलाई कमजोर होती है और फिर कपड़ा जो है वो उसका शाइन, उसका रंग फेड होता जाता है। फिर धीरे धीरे करते कुछ महीने, कुछ साल, डिपेंड करता है कैसा कपड़ा है, फिर एक दिन आता है आप उसको थोड़ा फट जाता है तो आप सिलाई करा देते हो, कहीं और से फट गया तो थोड़ा रफू करा देते हैं। लेकिन फिर आप देखते हो कि बहुत पुराना हो गया, 2-3 बार इसका अलग अलग जगह से सिलाई हो गया, अब इसको छोड़ देना चाहिए। तो आप क्या करते हो, पुराना हो जाने का उसको त्याग देते हो, फिर पोछा बन जाता है और फिर क्या करते हैं, फिर नया ले लेते हैं। तो उसमें कोई परेशानी है, पुराना छोड़ोगे तभी नया मिलेगा। तो वैसे ही भगवान कह रहे हैं, जब आत्मा इस शरीर में प्रवेश करता है, आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया, नया नया शरीर है, सब ध्यान देते हैं बच्चों का, फिर धीरे धीरे पुराना होता है, शरीर पुराना होता जा रहा है। जैसे जैसे हमारा शरीर बढ़ता जाता है फिर पुराना होता है। शुरू में तो बढ़ता है, 18 साल, 20 साल, 22 साल तक मजबूत होता है शरीर, फिर धीरे 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 30-35 साल तो ढलने लगता है। अब वो पुराना होता जा रहा है। अब आपने उसको बीमार हुआ, ट्रीटमेंट किया, फिर कहीं लग गया, कोई फ्रैक्चर हो गया, कहीं परमानेंट इंजरी हो गई, कोई पैरालिसिस हो गया, किडनी फेल हो गया, हार्ट में प्रॉब्लम हो गया, कुछ ना कुछ होते रहता है। फिर एक दिन आत्मा देखती है, अरे शरीर को बहुत रिपेयर करा दिया, ये बार बार मैकेनिक के पास ले जाओ, मतलब डॉक्टर के पास ले जाओ और बार बार रिपेयर कराओ, अभी ये शरीर हो गया, समय भी हो गया है, निकलो यहाँ से। तो आत्मा ये शरीर छोड़ देती है और नया शरीर धारण करती है। तो जैसे बचपन से जवानी तक भी शरीर बदल रहा है, जवानी से बुढ़ापे में भी शरीर बदल रहा है। ये कौन करते हैं? कृष्ण का अरेंजमेंट है। कृष्ण को पता है ये कैसे ट्रांसफर होता है और वो करते हैं। जैसे अगर आपकी गाड़ी में सीट है और उसके ऊपर कवर है, अब सीट कवर खराब हो गया है तो आप सीट कवर चेंज करते हो, सीट वही रहता है, आप तो वही हो ना, आप थोड़ी ना बदले। फिर सीट भी खराब हो जाती, फिर सीट बदलते हो, लेकिन आप अभी भी वही हो। फिर पूरी गाड़ी खराब हो गई, फिर पूरी गाड़ी बदलते हो, लेकिन आप वही हो।
तो ऐसे आत्मा तो अविनाशी है, लेकिन वो शरीर बदलते रहता है अपने कर्म अनुसार। इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन से, ये धर्म युद्ध है अर्जुन, तुम युद्ध करो। क्यों? क्योंकि युद्ध करोगे सारे सैनिक मारे जाएंगे तो इनको नया शरीर मिलेगा, तो अच्छा ही है ना। भीष्म का शरीर, द्रोणाचार्य का शरीर तो वृद्ध हो चुका है। हालांकि भीष्म देव अभी भी पावरफुल है, हमारा स्थिति अलग है, वो अलग युग था, ये अलग युग है। आज तो 30-35 बहुत हो गया, 25 से हम देखते हैं जवान लोग कमर पकड़ के बैठे हैं, कमर में दर्द हो रहा है, स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है इधर, क्योंकि दिन भर वो कंप्यूटर में काम करते हैं, वीडियो देखते हैं, तो स्पॉन्डिलाइटिस होगा, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। तो 50-60 के बाद तो वैसे ही शरीर धीरे 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 फिर मेंटेनेंस, हाई मेंटेनेंस हो जाता है ना। तो अगर भगवान कहते हैं कृष्ण अर्जुन से कि अगर तुम भीष्म को मार देते हो या द्रोणाचार्य की मृत्यु हो जाती है, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए अर्जुन, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है। अविनाशी तो तद्विति, आत्मा की तो मृत्यु नहीं होगी। और भीष्म को मैं नया शरीर दूंगा, द्रोणाचार्य को नया शरीर दूंगा, तंदुरुस्त शरीर मिलेगा, तो अच्छी बात है ना। इसमें दुख क्यों कर रहे हो? इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए, इसको गलत मत समझिए कि हम भी तलवार उठा के जाएं और जितने वृद्ध लोग हैं उनको मारते जाए तो उनको नया शरीर मिलेगा। ये आपका जिम्मेदारी नहीं है नया शरीर देने का, ये भगवान का है। अब भगवान अर्जुन के थ्रू करा रहे हैं, और क्योंकि भगवान करा रहे हैं, धर्म युद्ध है, तो सबका भला होगा। अब नया शरीर तो सबको लेना पड़ता है। अगर आप भक्ति करें तो भगवान आपको आध्यात्मिक शरीर दे के अपने धाम ले जाएंगे। अगर भक्ति नहीं करें या पूरी नहीं हुई है तो फिर यहीं रहना पड़ेगा, फिर भक्ति कंटिन्यू करनी पड़ेगी। जो असुरी प्रवृत्ति के उनको फिर भगवान पशु बना देते हैं, पक्षी बना देते हैं, जम्स वर्म्स, कीड़ा, ये सब बना देते हैं उनको। वो क्या करेंगे? सिस्टम है। अगर आपको बॉम्बे से दिल्ली जाना है और आपके पास सिर्फ 300 रुपए है तो फिर अनरिजर्व टिकट लेके बैठो। अगर आपके पास 600-700 रुपए है तो फिर स्लीपर में जाओ। अगर आपके पास 1500 रुपए है तो थर्ड एसी में जाओ। अगर आपके पास 5000 रुपए तो फ्लाइट पकड़ के जाओ। वो तो आपके कर्म के ऊपर है ना। तो भगवान क्या करेंगे? कर्म के अनुसार शरीर दे रहे हैं। अब आज के जो मॉडर्न वैज्ञानिक हैं वे नहीं मानते आत्मा के बारे में, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि आत्मा है, क्योंकि देख नहीं सकते। और आजकल स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है? बेटा जो देखते हो वही सत्य है। अब बहुत सारी चीज तो नहीं देखता है वो बेटा। कितनी चीज हम देख पाते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं सूक्ष्म देख पाते हैं। आप मेरे मन को देख पा रहे हो? आप मेरी बुद्धि को देख पा रहे हो? नहीं। इसीलिए तो इंटरव्यू होता है जॉब के पहले कि पता पड़े कि उसकी बुद्धि कितनी है। लेकिन उसे क्या पता, एग्जाम होता है, उसे क्या पता पड़ता है? चीटिंग करता है या रट के आ गया और फट से वहां पे छोड़ दिया। रात भर बैठ के रट्टा मारते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं, सवेरे छोड़ देते पेपर पे और अच्छा मार्क्स आ जाता है। तो क्या वो बुद्धिमान है? या जो व्यक्ति नहीं पढ़ा क्या वो बुद्धिमान नहीं है? ये मॉडर्न कल्चर का बड़ा दोष है ये। जैसे जो किसान है वो मान लीजिए नहीं गया, उसको पता है कौन सी खेती कब करनी है। क्रॉप रोटेशन, ये तो मॉडर्न साइंस बोलता है क्रॉप रोटेशन, लेकिन ये तो किसानों को पहले से पता कि ये वाला डाल। एक बार हमें खेत में गए, हमारा फार्म में, तो पत्ता गोभी लगी हुई थी बीच में, पत्ता गोभी। अब बीच में जगह खाली थी तो वहां पे भी उन्होंने कुछ लगा दिया। तो वहां के खेत वालों को पता है कि यहाँ पे क्या लगाएंगे, और जमीन में पोषण तो कॉमन है। तो क्या पोषण पत्ता गोभी का पौधा लेगा और क्या पोषण दूसरा पौधा लेगा, और ये अच्छा हो जाएगा और फिर ये निकल जाएगा, फिर दूसरा कुछ लगाएंगे। तो ये तो क्या, ये बुद्धिमानी नहीं है क्या? एक बैल के अंदर बहुत शक्ति होती है उसके शरीर में, तो उसको आपको खड़ा नहीं कर सकते। आप उसको चलाना पड़ेगा।
तो फिर वो बना देते हैं, वो ऑयल मिल छोटा सा होता है, वो घूमता रहता है, कोलू का बैल बोलते हैं, और तेल निकलते रहता है, दोनों काम हो गया। और बैल को भी उसको एक्सरसाइज करना है, चलना है उसको। तो ये क्या बुद्धिमानी नहीं है? असली बुद्धिमानी है ये समझना कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है मुझे बनाने वाले, और मेरा उनके साथ संबंध क्या है। ये है असली बुद्धिमानी। तो एनीवेज मॉडर्न वैज्ञानिक जो है नहीं मानते, लेकिन इतना मानते हैं कि पूरे शरीर में जो ऊर्जा आ रही है, जो शक्ति आ रही है, वो आ रही है हृदय से। फिर वो कहते हैं कि ब्लड वहीं सर्कुलेट हो रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, लेकिन वहां आत्मा बैठी है, वो नहीं मान रहे। क्यों हो रहा है? आत्मा की वजह से हो रहा है। तो भले आप माने ना माने, लेकिन इतना मान रहे हैं वैज्ञानिक कि हृदय से ही, और भगवान कहते हैं हृदय अर्जुन तिष्ठति, कि हृदय के देश में ही आत्मा रहती है। और जब ये जैसे हमने कहा शरीर पुराना हो जाता है तो छोड़ दे। तो अर्जुन से भगवान कह रहे हैं तुम युद्ध करो, क्योंकि तुम्हारा धर्म भी है युद्ध करना, और क्योंकि मैं कह रहा हूं तो ये धर्म युद्ध है, और तुम्हारा भाई धर्मराज खड़ा, तो इसमें जिसकी भी मृत्यु होगी उसको अच्छा ही शरीर मिलेगा। एक तो जवान शरीर मिलेगा, नया शरीर मिलेगा, प्लस उसको अपग्रेड किया जाएगा। क्यों? तो जो तो भगवान के सामने मृत्यु हो रही है, ऐसे ही वो भगवत धाम चले जाएगा। क्या नुकसान है? वो आत्मा चली जाएगी। तो अर्जुन तुम शरीर के लिए क्यों दुखी मानो? अगर मान लीजिए आपके पास कुछ कपड़ा है जो आप 2 साल से यूज कर रहे हैं, पहन रहे हैं, 2-3 साल तो चलता है कपड़ा, क्योंकि हम कभी 10 दिन में 15 दिन में एक बार पहनते हैं। और कोई व्यक्ति आके कहता है कि ये कपड़ा को मुझे दे दो, और उठा के उसको फाड़ के फेंक देता है। आपको लगेगा अरे ये क्या हो गया, लेकिन आपको नया कपड़ा दे रहा है, उससे अच्छा कपड़ा। एक तो नया है तो मजबूत है, प्लस उससे अच्छा कपड़ा, उससे अच्छा डिजाइन, उससे अच्छा कलर। तो आप दुखी होंगे क्या? नहीं। तो भगवान बोल रहे हैं उससे अच्छा शरीर देने वाला हूं। तो धर्म के मार्ग पे रहते हैं उस व्यक्ति को मृत्यु की चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसको आगे भी शरीर क्या मिलेगा? अच्छा मिलेगा, जिससे वो और अच्छे से अपने धर्म में लग सके। हरे कृष्णा।